अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी क्लास, मेरी बात आ रही है आप सबको और स्क्रीन शेयर शो हो रही है? यस मैम। वालेकुम सलाम मैम। यस मैम शो हो रही है। ओके क्लास, आज का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एनेस्थेटिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जेटिक ड्रग्स। And the pharmacology of analgesics drugs, and analgesics, these all are the painkiller drugs. They are used to kill the pain and for the treatment of the pain. Okay, and the important drugs that comes under these categories, all these analgesics, these are the non-steroidal anti-inflammatory drugs. These also may be the steroidal drugs, but steroidal drugs, they are not preferred. So non-steroidal anti-inflammatory drugs, these are mostly preferred as an analgesic agents, and the drugs are known as the analgesics that are used for the pain. So the first of all, you must know about the inflammation. What is the inflammation? The clinical features of the inflammation have been recognized since ancient times. So there are five cardinal signs of the inflammation. जो five जो हैं important signs हैं inflammation के, that are the swelling, redness, pain, heat, and loss of function. These five signs indicate the presence of inflammation. The underlying mechanism which produce these symptoms are complex, involving many different cells and cell products. So a normal inflammatory response is essential to fight infection and is part of the repair mechanism and removal of the debris following tissue damage. So inflammation, it is the normal physiological process and for the repairing purpose, and there are formation of certain mediators in order to repair the healing side, in order to repair the dissociative side or the site where that is undergone injury. And so the inflammation is used for that, and there are number of inflammatory mediators that are formed at the site of that injury, and these are the five most common and the cardinal signs of inflammation. There is the pain, there is heat at the site of inflammation, and then the redness, swelling, and the loss of function. The where the inflammation will be present, there the tissues will stop with working their normal functions, so that is known as the loss of function. But this is for the short period of time whenever the inflammation prevails. Once the inflammation is treated, then the tissues are regained to perform their normal functions or to perform their normal activities. So कुछ टाइम के लिए जो है टिश्यूज उनके फंक्शन लॉस हो जाते हैं जब तक इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रिवेल रह रही है। तो उसके बाद जब इन्फ्लेमेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, ट्रीट हो जाती है, तो टिश्यूज जो हैं वो दोबारा से रिगेन हो जाते हैं, दोबारा से अपने नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ आ जाते हैं। Sometimes inflammation prevails for long period of time. That is known as the chronic inflammation. अब chronic inflammation sometimes जो है वो permanent injury जो है वो भी cause कर सकती है। The inflammation can also cause disease due to damage of healthy tissues. So healthy tissues अगर damage हो जाएंगे तो उसकी वजह से different diseases जो हैं वो भी arise हो सकती हैं inflammation की वजह से। So it is necessary to treat that condition. This may occur if the response is over vigorous or the persists longer than is necessary. So additionally, some conditions have a previously unrecognized inflammatory components. For example, atherosclerosis. For example, in case of atherosclerosis, they some conditions they have a previously unrecognized inflammatory components. So there are formation of unrecognized inflammatory components,
So and these are the conditions in which the long term inflammation that can lead to development of number of diseases like the Alzheimer's diseases, the neurological diseases, the autoimmune disease, diabetes, the pulmonary disease, or even it may lead to the development of cancer. So the chronic inflammation, it may lead to harmful diseases or that may be lethal. The inflammatory response occurs in vascularized tissues in response to injury. So mostly it occurs in the vascularized tissue. Vascularized tissues, these are the tissues of blood vessels like veins, arteries, or capillaries, and it is a part of innate non-specific immune response. So you may be familiar about the immune response. This may be the innate response or the acquired response. So this inflammation, it is a part of innate immune response. The inflammatory response require activation of number of leukocytes, the neutrophils, eosinophils, basophils. These are the inflammatory mediators. अब जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे मीडिएटर्स जो हैं वो भी बन रहे हैं. तो मीडिएटर्स की वजह से जो है वो बॉडी में चेंजेस डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज कर सकता है. वहाँ पे फीलिंग ऑफ पेन जो है वो ज़्यादा हो सकती है. Although not all cell types need to be involved in an inflammatory episode, the cells migrate to the area of tissue damage from the systemic circulation and become activated. So the cells where the inflammation is prevailed, they become activated and they start releasing these mediators. And these mediators may be the cytokines, the leukotrienes, etc. And activated leukocytes at site of inflammation. Leukocytes, these are the white blood cells. White blood cells जिनको leukocytes भी कहा जाता है. They are activated and they are formed at the site of inflammation. They release compounds which enhance the inflammatory process, mainly the cytokines and the eicosanoids. अब eicosanoids जो है ये रैकिडोनिक एसिड का डेरिवेटिव है. इकोसानोइड्स जो है, अब रैकिडोनिक एसिड जो है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है रैकिडोनिक एसिड, वो नॉर्मल कंपोनेंट है. अब होता क्या, रैकिडोनिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. ब्रेक डाउन प्रोडक्ट से डिफरेंट जो है इकोसानोइड्स या साइटोकाइंस वगैरह जो है वो बनते हैं उसकी ब्रेक डाउन से. As in the diagram, there is formation of these leukocytes or cytokines. These mediators of inflammation, they uh, they causes elimination of microorganisms. So that's why the inflammatory process, it is the very much beneficial process. But if the inflammation prolongs for short period of time, but long term inflammation, it causes harmful effects. So, and monocytes, there are monocytes, the formation of monocytes, और monocytes जो हैं वो mature होके macrophages जो हैं वो बना देते हैं. Macrophages जो हैं वो जो है normal physiological process जो हैं वो perform करते हैं, like elimination of microorganisms, dead tissues, mediators. So जो dead tissues वगैरह होते हैं, इसके अलावा microorganisms होते हैं, उनको ये macrophages जो होते हैं वो उनको या तो engulf कर लेते हैं या बॉडी से आउट मतलब कि कर देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं. And the number of cytokines, they are also formed, like interleukins, the tumor necrosis factors, and the interferon. They are the peptide regulating cell growth, differentiation, and activation, and some have therapeutic value. अब cytokines जो हैं ये क्या होते हैं, they are the peptide in nature. Peptide होते हैं, sometimes ये protein in nature भी होते हैं. They regulate, they are very much essential for the cell growth, differentiation, and activation. अब interleukin 1 जो है, it plays a part in the sepsis syndrome and the rheumatoid arthritis, and the successful blockage of its receptor offers a therapeutic approach for these conditions.
देन ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर जो है वो सर्टन टाइप्स के होते हैं लाइक अल्फा बीटा एंड गामा। मोस्टली ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा जो है वो ज़्यादा फॉर्म होता है इन्फ्लेमेशन के दौरान। Tumor necrosis factor alpha, it is its function is just like same as that of interleukin 1. These agents that block him, like infliximab, are finding their place among the anti-rheumatic drugs. अब different anti-rheumatic drugs जो होती हैं like rheumatic disorders को या rheumatic disease को treat करने के लिए different drugs जो हैं वो होती हैं, वो क्या करती हैं, वो ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर को की प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम कर देती हैं। अब एग्जांपल है, जैसे एक ड्रग है इन्फ्लिक्सीमैब। इन्फ्लिक्सीमैब जो है रूमेटॉइड डिसऑर्डर में यूज़ होती है। इन्फ्लिक्सीमैब जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो ये एज अ ड्रग के तौर पर ये काम करती है और रियूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये बेनिफिशियल है क्योंकि ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर की प्रोडक्शन जो है वो कम कर देती है। And then during inflammation there are also formation of icosanoids. Icosanoids जो हैं arachidonic acid से बनते हैं और नंबर ऑफ इकोसोनाइड्स जो हैं वो बनते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं और इसके अलावा लाइपोक्सिन्स हैं। दीज ऑल आर द इकोसोनोइड्स, इनको हम इकोसोनोइड्स भी कहते हैं। इकोसा का मतलब होता है 20। इकोसा जो है लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है 20, मतलब कि इन सब में 20 या 20 से ज़्यादा कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द नेम गिवन to a group of 20 unsaturated fatty acid derived principally from the arachidonic acid in the cell membrane. अब 20 कार्बन आइटम के अनसैचुरेटेड ये फैटी एसिड्स होते हैं, ये जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं या थ्रोम्बोक्सिन्स हैं वगैरह unsaturated fatty acids होते हैं, means they possess double bonds, multiple double bonds. They are short-lived, extremely potent, and formed in almost every tissue in the body. Eicosanoids are involved in most types of inflammation, and it is on manipulation of their biosynthesis that most currently anti-inflammatory therapy is based. अब anti-inflammatory जो है थेरेपी, मतलब कि जितनी भी ड्रग्स हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए यूज होती है, उनका बेसिक मकसद क्या होता है? उनका बेसिक मकसद ये होता है कि ये इकोसानाइड्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन को या उनकी बायोसिंथेसिस को कम कर देती हैं। क्योंकि अब जितने इकोसानोइड्स जो हैं ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, इन्फ्लेमेशन जो है वो उतनी ज़्यादा होगी और पेन किलिंग जो पेन होगी उस साइड पे, स्वेलिंग होगी, हीटिंग होगी, वो ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ ड्रग्स हैं जिनको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी कहते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए वो ड्रग्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है, जब इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस जो होता है, इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस जो है वो कुछ भी हो सकता है जो कि इन्फ्लेमेशन काज करता है। ये जो है कोई भी डिजीज एजेंट हो सकता है, कोई आउटसाइड जो है बॉडी वो हो सकता है, इंजरी कोई हो सकती है। अब इसके नतीजे में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है फास्फोलाइपिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर। अब फास्फोलाइपेज एंजाइम क्या करता है, फास्फोलिपिड्स की ब्रेक डाउन कर देता है। अब फास्फोलिपिड्स ब्रेक डाउन जब होते हैं तो एराकिडोनिक एसिड जो है वो बनाते हैं। एराकिडोनिक एसिड के ऊपर फर्दर डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इकोसानोइड्स वगैरह जो हैं वो बनते हैं, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन या ल्यूकोट्राइन्स वगैरह बनते हैं। अब अगर साइक्लोऑक्सीजनेज जो है जिसको कॉक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एंजाइम अगर एराकिडोनिक एसिड के ऊपर एक्ट करेगा देन देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके अलावा अगर लाइपोक्सीजनेज जो है एंजाइम्स वो अगर एराकिडोनिक एसिड के ऊपर एक्ट करेगा देन देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ लेप्रोक्सिन्स और द ल्यूकोट्राइन्स। फिर लाइपोक्सिन्स बनेंगे या ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे जब ये एंजाइम लाइपोक्सीजनेज जो है वो
एराकिडोनिक एसिड के ऊपर एक्ट करेगा। अब लाइपोक्सिजनेज को LOX से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, LOX LOX, जैसे कि साइक्लोऑक्सीजनेज को COX से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। So due to different enzymatic actions, there would be formation of leukotrienes, the lipoxins, or the prostaglandins. Then the number of drugs that are used for the treatment of the inflammatory conditions. These are the cyclooxygenase inhibitors. These cyclooxygenase inhibiting drugs, they inhibit the enzymatic activity. अब कॉक्स इनहिबिटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो साइक्लोऑक्सीजनेस को इनहिबिट कर देते हैं। अब इनहिबिट करने की वजह से बॉडी में जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह या प्रोस्टानॉइड्स वगैरह वो नहीं बनेंगे। So the group of drugs, the class of drugs that is known as NSAID, अब उसको NSAID भी कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ये होती हैं। ये नॉन स्टीरॉयडल इन नेचर होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। तो बेसिक इनका जो मैकेनिज्म होता है ये कॉक्स के थ्रू होता है। ये कॉक्स को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह जो है वो नहीं बनते, तो इन्फ्लेमेशन जो है वो उनकी वजह से नहीं होती। These NSAIDs, they may be the non-selective COX inhibitors or they may be the selective COX inhibitors. अब COX जो है एंजाइम ये दो तरह का होता है, COX-1 या COX-2। अब मोस्टली ड्रग्स जो होती हैं COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट कर देती हैं। दीज आर द नॉन सिलेक्टिव इन नेचर। लेकिन कुछ ड्रग्स होती हैं वो सिलेक्टिव COX-2 को ही इनहिबिट करती हैं, उनको हम सिलेक्टिव इनहिबिटर्स कहते हैं, क्योंकि सिलेक्टिवली ये COX-2 को इनहिबिट कर रही हैं, COX-1 के साथ इनका कोई एक्शन नहीं होता। So these are the drugs, and the classification of these are the COX-2 inhibitors. These are the selective drugs. They selectively inhibit the COX-2 enzymes. These are the selective COX-2 inhibitors. The COXIB. अब COXIB drugs भी इनको कहते हैं, like celecoxib है, etoricoxib है, pericoxib है। ये जितनी भी COXIB है ये सिलेक्टिव हैं, COX-2 इनहिबिटर्स हैं। इसके अलावा प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स जो हैं ये भी सिलेक्टिव ही होती हैं, ये COX-2 को ही इनहिबिट करेंगी। दीज आर द meloxicam, निम्फुलाइड एंड नेबुमिनेट, सो नेबुमिटोन। So these are the selectively, they only selectively inhibit the COX-2 enzymes. And now the non-selective जो होती हैं वो दोनों को COX-1 और COX-2 दोनों एंजाइम्स जो हैं उनको इनहिबिट कर देती हैं। They are the general class of NSAIDs like salicylate, phenylacetates, or propionates and pyrazolones, etc. ये जितने भी ड्रग्स हैं ये नॉन सिलेक्टिव COX-1 एंड COX-2 इनहिबिटर्स हैं। तो सम ड्रग्स जो हैं वो डेरिवेटिव ऑफ एसिड्स हैं, कुछ एसिड्स के डेरिवेटिव है, लाइक फर्स्ट वन इज सैलिसाइलेट। सैलिसाइलेट जो है सैलिसिलिक एसिड से डिराइव शुदा है। ये सैलिसिलिक एसिड का प्रोडक्ट है सैलिसाइलेट जो है। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन जो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, इट आल्सो हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैलिसिलिक एसिड। सो सैलिसाइलेट्स में एस्पिरिन भी आ जाती है। इसके अलावा फिनाइल एसिटेट्स है, ये फिनाइल एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव है। इसके अलावा इंडोल एसिटेट है, इंडोल एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव है। इनोलेट्स हैं, इनोलिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी ये हैं ये एसिड के डेरिवेटिव कंपाउंड्स हैं, ये नॉन सिलेक्टिवली जो है COX को इनहिबिट कर देंगे। दैट्स व्हाई दे आर द नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, so they play important role in inflammation. The non-selective inhibitors, they are the derivative of acids mostly, for example salicylate, the acetyl salicylic acid like aspirin and methyl salicylate है। इसके अलावा phenyl acetate है। इनकी एग्जाम्पल जो है दैट इज डिक्लोफेनेक, जो बहुत कॉमनली यूज होता है, डिक्लोराइन के नाम से जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा इंडोल एसिटेट्स हैं, इनकी एग्जाम्पल इंडोमेथासिन। इनोलेट्स जो हैं
इनके एग्जांपल है पायरोक्सिकैम, ऑक्सीकैम, लिनॉक्सिकैम, नॉक्सिकैम एक्सेट्रा। इसके अलावा प्रोपायोनेट्स हैं, ये डेरिवेटिव हैं प्रोपायोनिक एसिड के, लाइक नेप्रोक्सन है, कीटोप्रोफिन है, आइबोप्रोफिन है। इसके अलावा अदर्स जो हैं एसिड्स के अलावा जो हैं अदर्स पायराजोलोन्स हैं, पायराजोलेटिन डायोन्स हैं, ये ज़्यादा कॉमनली जो हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, लेस प्रेफरेबल ड्रग्स हैं। मोस्टली जो है वो एसिड्स के डेरिवेटिव जो हैं वो यूज़ होते हैं। एंड एनसेड्स जितने भी हैं इनका बेनिफिशियल इफेक्ट्स जो हैं ओवरऑल ये प्रोस्टाग्लैंड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ये कॉक्स को इनहिबिट कर रहे हैं। कॉक्स एंजाइम जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टाग्लैंड्स जो है वो बना रहा है बॉडी के अंदर। अब वो प्रोस्टाग्लैंड्स की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो रही है, क्योंकि ये एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। अब इनका एक्शन जो है वो जो है वो एनर्जेसिया भी हो सकता है, द पेन किलिंग इफेक्ट, द एंटीपायरेसिस, इनका इफेक्ट जो है एंटीपायरेसिस भी हो सकता है, लाइक ये फीवर को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दे आर कनेक्टेड विद इन्फ्लुएंसेस ऑफ थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द हाइपोथैलेमस। यू नो द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो है, जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर जो है, बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करता है, दैट सेंटर इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। थैलेमस के बिल्कुल नीचे हाइपोथैलेमस जो है वो प्रेजेंट होता है, इट इज अ टेम्परेचर कंट्रोलिंग यूनिट। एंड देन द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, उनका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है सेम उसी तरह कि ये कॉक्स को इनहिबिट कर देंगे, तो उसकी वजह से इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है वो भी होगा। इसके अलावा एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन जो है वो भी इनका होगा, मीन्स के ये थ्रोम्बोसिस के प्रोसेस को कम कर देंगे। सो इन अ लो डेली डोज, अगर लो डोज में दी जाए तो ये इनका एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन जो है वो भी होता है। फॉर एग्जांपल अब इसकी एग्जांपल जो है वो एस्पिरिन की है। एस्पिरिन अगर 75 mg तक यूज़ की जाए तो उसका एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन है। इसके अलावा 75 mg से ज़्यादा अगर हम यूज़ करें तो उसका एनर्जेटिक और एंटी पायरेटिक इफेक्ट जो है वो शो होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डोज एंड ओवरऑल जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का जो ओवरऑल एक्शन है, दिस में भी द एनर्जेटिक, द एंटीपायरेटिक, द एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड द एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन, these are the most commonly actions that are related to these anti-inflammatory drugs. And then the most common toxicities, the adverse reactions जो इनके होते हैं related होते हैं मोस्टली जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं उनके ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, मोर और लेस ये होते हैं, कॉमन होते हैं, सिमिलर होते हैं, लाइक दे में काज गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज। अब गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज जो है वो काज कर रहे हैं, इट मीन्स के अल्सरेशन की कंडीशन को एग्रावेट कर रहे हैं। इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम अल्सरेशन डिजीज then the condition may be aggravated due to use of these anti-inflammatory drugs. क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन ई टाइप जो है ये जो है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट है, म्यूकोसा की प्रोटेक्ट करता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन ई टाइप को भी इनहिबिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जो म्यूकोसल डैमेज जो है वो भी काज कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो है टॉक्सिसिटी, दैट में काज ब्लीडिंग, क्योंकि इनका एंटी थ्रोम्बोसाइटिक इफेक्ट है, तो ये ब्लीडिंग भी काज कर सकते हैं। इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट फैक्टर। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 टाइप जो है, थ्रोम्बोक्सिन A2 टाइप ये जो है ये क्लॉटिंग फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। अब इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम अगर कर रहा है, सिंथेसिस कम हो रहा है, तो उसकी वजह से प्लेटलेट जो है वो इनहिबिट हो रहे हैं। अब प्लेटलेट्स यू नो इनका थ्रोम्बोसाइटिक फंक्शन है, ये थ्रोम्बोसिस काज करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग काज करते हैं। अब वो अगर इनहिबिट हो गए देन देयर वुड बी द कंडीशन नोन एज द ब्लीडिंग। द नेक्स्ट इज द लिमिटेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो। अब रीनल ब्लड फ्लो जो है उसको भी कम कर रहे हैं सोडियम एंड वाटर रिटेंशन की वजह से। अब मोस्टली जो एनसेड्स जो होते हैं दे आर द नेफ्रोटॉक्सिक इन नेचर, and then they may also aggravate the condition of asthma. Asthma जो है वो condition that is related with prostaglandin type F inhibition. अब prostaglandin जो type F जो है वो ब्रोंक्यूल्स में बनता है, ब्रोंकियोडाइलेटर ये सब्सटेंस है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ब्रोंक्यूल्स की डायलेटेशन करता है। अब ये इनहिबिट हो रहा है, इसकी सिंथेसिस अगर इनहिबिट हो रही है तो they may also cause the condition that is known as the asthma.
and these are the references of today's lecture. जी क्लास, अब तक जितना डिस्कस किया आपको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। Okay, today we have discussed about the pharmacology of analgesic drugs. These are the non-steroidal anti-inflammatory drugs. और इन्फ्लेमेशन जो है वो बेसिकली क्या होती है इसका ओवरव्यू, एंड देन साइटोकाइंस जो है वो क्या होते हैं, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिफरेंट जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, देन COX-1 एंड COX-2 सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स। तो इनका ओवरऑल जो है फंक्शंस वो क्या होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का, और इसके अलावा इनकी सिलेक्टिव जो है टॉक्सिसिटीज जो है वो क्या होती हैं ओवरऑल। मैम यस, मैंने आपकी प्रेजेंटेशन का पूछना था कि अगर हम मिनिमम भी 3 ड्रग्स ले रहे हैं तो मैम उनका मटेरियल है जो वो एक ड्रग का मटेरियल ऑलमोस्ट 3 स्लाइड्स पे चला जाता है, 3 से 4 स्लाइड्स पे। मैम उन्हें हम प्रेजेंट करने में टाइम कम लेंगे, लेकिन अगर हमारी स्लाइड्स नंबर ऑफ स्लाइड्स ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नंबर ऑफ स्लाइड्स जो हैं वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 8 से 10 स्लाइड्स आप बनाएं, अपने सहूलत के अकॉर्डिंग आप देखें, उसके अकॉर्डिंग बनाएं। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 ड्रग्स जो हैं वो इनफ हैं, वो आप कर लें। यस मैम, वही कर रहे हैं मैम, भी ज़रूरी है कि 2 ही बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है आपके पूरे ग्रुप में। अगर आपका 6-7 मेंबर्स का ग्रुप है, आप में से एक मेंबर भी प्रेजेंट कर सकता है, 2, 3, 4 जितने भी विलिंग है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। ओके मैम, थैंक यू। ओके, आज का जो लेक्चर है वो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है तो क्या हमें बुलाएंगे फिर यूनिवर्सिटी में? ये डिपेंड करता है, अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया, वो पीछे से तो उन्होंने अलाउ कर दिया यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने के लिए, लेकिन आई थिंक ये फेज़ वाइज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन करेंगे। तो डिपेंड करता है मंडे को ये बुलाते हैं स्टूडेंट्स को या नहीं बुलाते। अभी तक कोई नोटिफिकेशन वगैरह तो नहीं आया। ओके मैम। ओके, क्लास आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। मैं स्लाइड्स जो हैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। मैम यस, मैम मैम यस, आप नहीं अपना कोई ओपिनियन दे सकते कि आप ना खोलें, चलें दूसरा सेमेस्टर आप हो ही लेने दें, इनका थोड़े से तो दिन रह गए हैं। आप किस तरफ हैं, यूनिवर्सिटी ओपन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं अभी दूसरा सेमेस्टर बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, मतलब कोई 10% ही रह गया, बल्कि 5% रह गया, तो भी हम अब घर से कंप्लीट कर देते हैं, फिर उसके बाद 2 महीने का वो वेकेशन आती है मेरे ख्याल। हाँ जी, मैम एक्चुअली ना डिसऑर्डर आ जाता है, इस तरह डिसऑर्डर सारा मतलब आ जाता है कि मतलब पहले आप 2 सेमेस्टर जो है ऑनलाइन गुजार चुके हैं, यूनिवर्सिटी खुले ना खुले कम से कम पेपर जो है वो अब ऑनलाइन ही होने चाहिए। वो अगर फिजिकल लेते हैं तो फिर ये ज्यादती है कि बैठा हाँ के जी, ऑनलाइन। और क्योंकि ये है कि आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स जो हैं वो भी हो चुके हैं, अब सेमेस्टर जो है वो थोड़ा सा ही रह गया, तो होपफुली जून के लास्ट में आपके फाइनल भी हो सकते हैं। तो जी मैम, जो ऑफिशियल है ना आया जो आया था प्लान, उसमें भी 26 जून से फाइनल थे, लेकिन अब चूंकि हमारा सेमेस्टर लेट शुरू हुआ था तो मेरा तो ख्याल है कि ये 20 के आसपास ही फाइनल शुरू हो जाने हैं, नोटिफिकेशन आ जाना है। तो फाइनल्स जी, लेके भी जून में तो हर तरह से वाइंड अप हो जाना सेमेस्टर, उसके बाद समर ब्रेक है 2 महीने की, तो फिर हमने फारिग ही होना है, तो फिर फायदा क्या है बुलाने का। हाँ जी, वही ना, और ऊपर से मसला ये है कि जो हॉस्टलाइट्स हैं मोस्टली उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ज़्यादा मसला जो है वो हो सकता है हॉस्टल में रहने का, और वैसे इतना कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आप लोग GR CR भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, HOD से बात कर सकते हैं। इसके अलावा अचानक से इनको सारे अगर इंस्टीट्यूट ओपन भी हो गए तो इन्होंने सबको अचानक से नहीं बुलाना, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा एग्रावेट भी हो सकती है। अब जितना कंट्रोल अब तक किया जी है मैम, जो वो नोटिफिकेशन जो आया उसमें भी उन्होंने मतलब क्लियरली नहीं मेंशन किया, भाई ये तो उसका ट्वीट आया है तो उसके ऊपर फिर लोगों ने इस तरह से जी, ये भी जाया है, है। लेकिन और जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज मेंशन किया, और वो भी कहा है कि जी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के जो है ना सिर्फ वो MBBS स्टूडेंट्स आएंगे, तो हाँ इतना जी, क्लियर ये नोटिफिकेशन
ये जो ओपन करें इंस्टीट्यूट्स वगैरह, ये फेज वाइज ओपन होंगे, तो मरहला वार ये ओपन होंगे। अचानक से इन्होंने नहीं ऐसे कर देना कि सारी ओपन हो जाए सारा कुछ ही, कि कहीं कोरोना जो कोविड की जो सिचुएशन है वो एग्रावेट भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि ये क्या करते हैं, कौन किसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ वाले जो हैं वो डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अब पीछे से अलाउ कर दिया उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को कि आप ओपन कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो कैसा डिसीजन लेंगे। यस, ओके क्लास, चलें जो भी डिसीजन होता है वो देखी जाएगी। ओके क्लास, आज की क्लास जो है मैं क्लोज करती हूँ, और इसके अलावा आप काइंडली मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा जैसे आप पहले करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज मैम।